بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شہزاد قریشی۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دی پولیٹیکل افیئر۔ ناظرین، آج صدر عارف علوی صاحب سے پہلے تو ملاقات کی ہے سنجرانی صاحب نے، صادق سنجرانی صاحب جو کہ چیئرمین ہیں سینٹ کے۔ انہوں نے ملاقات کر کے ملک کی سیاسی اور جو معاشی حالات ہیں ان کے بارے میں بات چیت کی ہے۔ اسی اثنا میں جو ہے ڈار صاحب نے بھی عارف علوی صاحب سے ملاقات کی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کو اب باجوہ بہت زیادہ یاد آ رہا ہے، کیونکہ باجوہ نے جو کچھ ان کے لیے کیا ہے اب وہ سب کچھ ان کے لیے کرنے والا کوئی پیچھے ہے نہیں۔ اب ان کے وہ لاڈ جو ہیں اب وہ ہو نہیں رہے پورے، لہذا انہوں نے مجبوراً ڈار کو صدر علوی صاحب کے پاس بھیجا ہے اور یہ درخواست کی ہے ڈار صاحب نے کہ علوی صاحب پلیز عمران خان کو سمجھائیں کہ وہ پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلیاں جو ہیں یہ فی الحال ڈیزالو کرنے میں جلدی نہ کرے، تھوڑا ٹائم لے، اتنی جلدی نہ کرے۔ علوی صاحب نے ڈار صاحب کو کہہ دیا ہے کہ آرمی چیف سے میری جو باتیں ہوئی ہیں اس میں آرمی چیف نے صاف کہہ دیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت وہ سیاسی معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے اور وہ اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھیں گے۔ فوج سیاست سے دور رہے گی، لہذا کوشش کی جائے کہ سیاست میں فوج کو کسی بھی شکل میں نہ کھینچا جائے۔ اور ڈار صاحب اپنے جنہوں نے آپ کو میرے پاس بھیجا ہے ان کو جا کے یہ بتا دیں کہ سینس آف رسپانسبلٹی کا ثبوت دیں۔ آرمی چیف صاحب جو ہیں بالکل بھی سیاست میں نہیں آنا چاہ رہے۔ میں آپ کا یہ پیغام جو ہے عمران تک پہنچا دوں گا کہ آپ نے درخواست کی ہے کہ وہ کے پی کے اور پنجاب اسمبلیوں کو جلدی ڈیزالو نہ کریں، لیکن یہ ہے کہ آرمی چیف بھی چاہتے ہیں کہ آپ ادھر ادھر کی ساری جو حرکتیں بند کریں، آپ جلد سے جلد جو ہے الیکشن کی طرف جائیں، قومی اسمبلی ڈیزالو کریں اور الیکشن کا اعلان کریں، الیکشن کی ڈیٹ دیں۔ عمران خان بھی یہ چاہ رہا ہے کہ فری اور فیئر الیکشن ہو جائے، آنے والی حکومت جو ہے وہ فیصلہ کرے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ ملک کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں اور آرمی چیف ہمیں ایک اچھا آدمی مل گیا ہے، تو اس لیے ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ناظرین، چیف جسٹس آف پاکستان نے ارشد شریف شہید کے قتل کے کیس کو اٹھا لیا ہے اور از خود نوٹس لیا ہے۔ 5 ججوں پر مشتمل ایک بینچ بنایا ہے اور چیف جسٹس صاحب نے ارشد شریف کی والدہ سے کہا ہے کہ آپ تحقیقاتی ٹیم کے سامنے اپنا بیان جمع کرائیں، وہ ریکارڈ کرائیں۔ ارشد شریف کی والدہ نے بتایا کہ وہ آلریڈی تحقیقاتی ٹیم کے سامنے بھی بیان دے چکی ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ایف آئی آر بہت مختصر ہے، اس لیے کہ کوئی تحقیقات اس طرح سے ہوئی نہیں، اس لیے ایف آئی آر بہت مختصر ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ ارشد شریف کی والدہ نے متعدد افراد کے نام دیے ہیں جو ان کے نزدیک ان کے بیٹے کے قتل میں ملوث ہیں۔ ارشد شریف کی والدہ نے کہا کہ میں تو صرف اتنا جاننا چاہتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کو انصاف ملے اور یہ بتایا جائے کہ وہ کون تھا جس نے میرے بیٹے کے لیے پاکستان میں زمین تنگ کر دی تھی، 16 سے زائد ایف آئی آریں کٹوائیں، دبئی سے اسے نکلوایا اور نیروبی سے واپس آنے سے پہلے ہی، حالانکہ اس نے وہاں سے بھی دوبارہ دبئی آنے کے لیے درخواست دی تھی ویزے کی، اسے نہ آنے دیا اور وہاں اسے قتل کرایا۔ وہ کون ہے؟ مجھے تو انصاف چاہیے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ عالمی اداروں سے بھی اگر تعاون کی ضرورت پڑے تو وزارت خارجہ کو چاہیے کہ وہ تعاون کرے، اقوام متحدہ سے بھی اگر مدد چاہیے ہو تو وہاں سے بھی مدد لی جائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جے آئی ٹی بھی بنائی جا چکی ہے، اسلام آباد کے جو آئی جی ہیں ان کو رپورٹ کرے گی جے آئی ٹی اور وہ رپورٹ پھر سپریم کورٹ میں جمع کرائی جائے گی۔
नाजरीन, अरशद शरीफ को, उसकी फैमिली को, उसकी वाइफ को, उसकी माँ को, उसके बच्चों को इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन जो अरशद शरीफ की फैमिली पर गुजर रही है उसकी एक झलक मैं आपको एक इंटरव्यू में दिखाता हूँ। और ये इंटरव्यू एक ब्लॉगर है नया दौर, उसने उनके घर पे जाके उनकी वाइफ से, अरशद शरीफ की वाइफ से लिया है। आप देखिए, फिर उसके बाद फैसला कीजिए कि जुल्म कितना हुआ है और तकलीफ़ अरशद शरीफ के घर वालों को कितनी है। इसका अज़ाला क्या होगा अल्लाह जानता है। आप देखिए। जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में हूँ, आपका होस्ट निगार खान और आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहीद अरशद शरीफ साहब के घर पे। उनकी ज़ौजा मोहतरमा मेरे साथ, जबरिस्ती का साहिबा मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे आज जो कि उनकी रस्म चल रही है 40वां, आज उनके 40वां मुकम्मल दिन हो गए हैं, 40 दिन। तो उस हवाले से हम यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैम, अरशद साहब शहीद की जो अल्लाह पाक कब्र की मंज़िलें आसान फरमाए, सब्र जमील आपकी फ़ैमिली को अता फरमाए। क्या समझती हैं इंसाफ के असूल के लिए जो इतनी आप कोशिशें कर रहे हैं, लेटर्स लिखे जा रहे हैं चीफ जस्टिस साहब को, आपको इंसाफ होता नज़र आ रहा है? देखिए, अभी तक तो कोई इंसाफ नहीं हुआ, चाहे कीनिया हो या चाहे पाकिस्तान हो। अभी तक कीनिया ने भी उस मुजरिम को छुपाया हुआ है, किधर है वो मुजरिम, और उसको सामने लाएं और पाकिस्तान इंटरपोल के ज़रिए से उस पुलिस वाले को यहाँ लाए। और अगर एक है तो एक को लाए, दो हैं तो दो को लाए और उनको यहाँ ला के जो है वो फांसी दी जाए। और दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान में ऐसे क्या मुहर्रिकात है जिसकी वजह से उनके ऊपर 16 FIRs हुई और उनको मुल्क छोड़ना पड़ा, तो वो चीज़ भी जो है वो यहाँ पर इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए कि उनके मुजरिमान जो पाकिस्तान में हैं और जो उनके मुजरिमान कीनिया में हैं, उनको दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अभी तक खैर कोई पेशरफ्त नहीं है। और मैं अगर इस मुल्क में किसी दो लोगों की तरफ इंसाफ के लिए देख रही हूँ तो वो एक तो सदर पाकिस्तान है और एक चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन इन दोनों की तरफ से फ़िलहाल कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैम, क्या समझती हैं, अगर देखा जाए अगर पाकिस्तान एक मुनासिब नहीं समझता, उससे अगर देखा जाए तो पूरे मुल्क में एक जो अभी नया ट्रेंड चला है, अरशद साहब को इंसाफ दिलाने के लिए ख़त लिखे जा रहे हैं, एप्लीकेशंस लिखी जा रही हैं। क्या समझती हैं, अभी आपको नज़र आ रहा है, आपको जो आप इंसाफ का हसूल देख रही हैं, आपको इंसाफ मिलेगा, या इस वाले से क्या कहना देखिए, चाहिए? ये इमरान रियाज ख़ान भाई हैं, उन्होंने ये कैंपेन शुरू की थी और इस पर पाकिस्तानियों ने बहुत रिस्पॉन्ड किया। उन सबका बहुत ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने इतने ज़्यादा बच्चों ने, बड़ों ने, बुज़ुर्गों ने, ख़वातीन ने ये ख़तूत लिखे, मर्दों ने। और मुझे अब लगता है कि जब इतने ज़्यादा ख़तूत जाएंगे तो अगर रद्दी की टोकरी की नज़र नहीं हुए, और होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपकी में हमारे आइन में ये है कि अवाम जो है वो ताकत का सरचश्मा है। तो अगर अवाम इस चीज़ की ख्वाहिशमंद है तो फिर अरबाब इख्तियार को ये चीज़ सोचनी चाहिए, उन्हें ये करनी चाहिए और अरशद के इंसाफ के लिए उन्हें जो है वो कमीशन बनाना चाहिए, ताकि जो मुहर्रिकात पाकिस्तान के थे उनकी तहकीकात की जाए और इसके साथ जो कुछ कीनिया में हुआ उसकी भी मुकम्मल जामे तहकीकात की जाए, क्योंकि उनके मुजरिमान दोनों तरफ हैं, पाकिस्तान में भी हैं और कीनिया में भी हैं। देखा जाए तो अगर आपकी फ़ैमिली पे एक नज़र डाली जाए तो शुरू से ही देखा जा सकता है शहादतें उन्होंने दी हैं एक मुल्क के लिए, इस कौम की खातिर। अरशद शरीफ साहब के बड़े भाई उन्होंने भी शहादत का रुतबा पे फैज़ हुए हैं, उनके वालिद साहब भी शहादत के रुतबे पे फैज़ हुए। तो क्या समझती हैं, ये जो अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए शहादत का रुतबा हर बड़े छोटे पे फैज़ किया जा रहा है, एक आपकी तरफ से इनाम अगर समझा जाए, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, शहीद हमेशा ज़िंदा रहते हैं और ये तो आपको पता है कुरान पाक में वाज़ेह तौर पे दर्ज है। लेकिन जो आप फैमिली को अगर आप देखें ना, तो फैमिली के लिए उतना ही ट्रॉमा होता है, चाहे वो एक आर्म डेथ हो, चाहे एक शहादत का वो हो। लेकिन जी, चाहे शहादत हो या आपको पता है कि लवाहिकीन उसी कर्ब में गुज़रते हैं। और लेकिन ये बहुत बड़ा रुतबा है, फ़ख्र है हमें कि उन्होंने अपनी जान जो है वो इसलिए दी कि वो हक़ सच की बात कर रहे थे और लाखों लोगों ने उनकी तदफीन में शिरकत की। अभी भी लोग उनकी फूल के कब्र जो है वो मतलब सूखने नहीं देते, कब्र पे जो उनकी फूल हैं। तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि वो एक बहुत बड़े दर्जे पे गए और वो शहीद हैं, ज़िंदा हैं। लेकिन
बतौर अहलिया जो एक तकलीफ़ होती है ना, जो आपका इतना बड़ा लॉस होता है और जो आपकी ज़िंदगी पूरी तब्दील हो जाती है, फिर आपको इंसाफ नहीं मिलता, तो ये चीज़ें बहुत तकलीफ़देह होती हैं। और ये बहुत अपने किसी प्यारे शौहर को, अपने किसी अज़ीज़ को जो है वो गोली लगे हुए देखना, सर्द खाने में देखना, पोस्टमार्टम होते हुए देखना, ये बहुत तकलीफ़देह है। मैम क्या समझती हैं वो क्या चीज़ है जो पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया को यहाँ खींच के ले आया अरशद शरीफ के लिए? वो एक अरशद शरीफ में क्या वो चीज़ थी जो इसकी मोहब्बत का बायस बनी हुई है आज तक? अरशद शरीफ में बहुत सी क्वालिटीज़ थी, शायद वो लोगों को नहीं पता होंगी। वो तो सिर्फ एक अच्छा सहाफ़ी, सच बोलने वाला और बहादुर इंसान जो हैं वो के तौर पे जानते हैं। इसके अलावा वो बहुत जनरस थे, वो बहुत ज़्यादा सदका खैरात करते थे और दोनों हाथों से जो है वो लोगों को दिया करते थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जब उनकी तदफीन हो रही थी और मैं उनका जनाज़ा देख रही थी, तो मुझे यही लगा कि किसी की दुआ लगी है उनको, तो शायद इसलिए उनको इतना बड़ा मकाम मिला है। इसमें सिर्फ उनका सच बोलना और बहादुर होना शामिल नहीं था, उनका सदक़ात खैरात करना भी शामिल था। क्या समझती हैं सहाफ़त की नज़र पे अगर देखा जाए तो सहाफ़त का वो एक बेबाक दरवाज़ा थे जो कि ज़ालिमों ने, लाइनों ने एक किस्म का बंद कर दिया। इस हवाले से क्या देखती हैं? आपकी फ़ैमिली का ये बहुत बड़ा नुकसान है, तो किस नज़र से देखती हैं इस चीज़ को आप? ये सिर्फ मेरी फैमिली का नुकसान नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का नुकसान है, क्योंकि वो हमेशा ये सोचते थे कि वो अपनी रिटायरमेंट में वो तमाम प्रोग्राम बनाएंगे जो कि उन्होंने इस 10-12 साल में जो है वो फ़ौज के साथ रिकॉर्ड किए। जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक जंग थी वो उन्होंने जो है कवर की थी, उसका एक बहुत बड़ा डाटा मौजूद था। लेकिन अब तो उनके सारे इक्विपमेंट इस वक्त मिसिंग है, मुझे नहीं पता कि वो किधर हैं। वो एक लॉस है बहुत बड़ा कि वो नहीं बन सकेगा। दूसरा, उनसे जर्नलिज़म ने आगे स्टूडेंट्स के अंदर मुंतकिल होना था। जब वो रिटायर होते, वो पढ़ाते और ये सब करते और नए आने वालों को ये चीज़ें सिखाते, लेकिन जो वो बोल गए हैं, जो वो लिख गए हैं, जो उनकी वीडियोस मौजूद हैं, जो उनके शोज़ मौजूद हैं, आई थिंक वो भी एक जर्नलिज़म के अंदर जो है वो स्टूडेंट्स के लिए एक कलीदी किरदार अदा करेंगे और इसी तरीके से फेयरलेस होकर नए आने वाले जो हैं वो काम करेंगे। मैम क्या समझती हैं अरशद शरीफ साहब वो जो एक सवाल अधूरा छोड़ गए कि वो कौन था, वो क्या चीज़ थी, वो कौन था? इस हवाले से क्या कहेंगी? वो कौन था जिसने अरशद शरीफ पे यहाँ सहाफ़त के दरवाज़े बंद करवाए? देखिए, यही सवाल मेरा भी है कि मुझे बताया जाए कि वो कौन था जिसने अरशद पे 16 FIRs कराई, वो कौन था जिसने अरशद का शो बंद करवाया, वो कौन था जिसने अरशद को जो है मुल्क छोड़ने पे मजबूर दिया। इसका जवाब आपको जो है हर बच्चा देगा, इस मुल्क का हर कोना हर ज़र्रा देगा, इस मुल्क की यूथ देगी, इस मुल्क में आने वाली नई नस्लें देंगी और शायद आपको कमेंट बॉक्स के अंदर भी जो आप लोग जब अपलोड करते हैं वहाँ पे भी इसका जवाब मिल जाएगा। जी देखें नाज़रीन, आप लोगों ने ये जो अरशद शरीफ साहब का जो एक सहाफ़त का बेबाक दरवाज़ा थे, उन्होंने बेदरीग कुर्बानियाँ दी पाक फ़ौज के लिए भी, इस मुल्क के लिए भी, और हर अव्वल दस्ते की तरह पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हुए हमेशा आपको स्क्रीन पे नज़र है, सच बोलते हुए नज़र आए। उसको बंद कर दिया गया। आज उसका 40वां मुकम्मल हो चुका है और यहाँ पे उनके घर में तकरीबात जारी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन, ये सब कुछ देखने के बाद अब आप खुद ही फैसला कीजिए कि क्या जुल्म हुआ है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए कि नहीं। दुआ कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने, उनके साथ 4 और जज हजरात हैं, अब केस तो उठाया है, अल्लाह करे कि कोई इंसाफ हो। आज तक तो नहीं हुआ। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।